محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مصیبت سے چھڑائے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبتوں سے چھڑائے گا، اور جو شخص کسی مفلس غریب پر آسانی کرے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخے پر۔ جوش و خروش کے ساتھ عرس شریف حضرت سید شاہ امان اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ بابن صاحب پہاڑی کے سند المبارک کا اہتمام۔ ملک میں امن و امان و کورونا کے خاتمے کے لیے کی گئی دعائیں۔ ریاست و ضلع میں سردی کی لہر میں ہوا بے تحاشا اضافہ، ضلع میں 12 ڈگری درجہ حرارت کیا گیا ریکارڈ، عوام سے احتیاط کی اپیل۔ تمام طبقات کو مساوی حق فراہم کرنے والی سیکولر جماعت ٹیآرایس و سی ایم کی سیاست، رکن اسمبلی شکیل عامر، انہوں نے کرسمس تہوار کے مدنظر عیسائی بھائیوں میں کی ملبوسات کی تقسیم۔ محمد معیز الدین کو ریڈ کراس سوسائٹی منڈل چیئرمین نامزد کرنے پر جمعیت العلماء کی جانب سے دی گئی تہنیت۔ ہر طبقے و مذہب کی فلاح و بہبود کے لیے سی ایم کے سی آر کوشاں، رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا، انہوں نے کرسمس تہوار کے مدنظر عیسائی برادری میں کی ملبوسات کی تقسیم۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شان و شوکت و ذکر و افکار کے ساتھ عرس شریف حضرت سید شاہ امان اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس شریف کے موقع پر محفل سندل کا اہتمام۔ کثیر تعداد میں عوام نے کی شرکت و ملک میں امن و امان و کورونا کے خاتمے کے لیے کی گئی دعائیں۔ شہر نظام آباد کے علاقے بابن صاحب پہاڑی پر واقع درگاہ حضرت سید شاہ امان اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عارف الحق سید بہلول شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت الحاج سید شاہ محمود عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ قادری کا سالانہ عرس شریف ہر سال کی طرح رواں سال بھی جوش و خروش کے ساتھ اہتمام عمل میں لایا گیا۔ عرس شریف کے مدنظر خصوصی طور پر راستوں کو سجایا گیا، وہ روشنی کا اہتمام عمل میں لاتے ہوئے بازار بھی لگایا گیا۔ اسی طرح آج سندل مالک کی تقریب کا خانقاہ پر اہتمام کیا گیا، جہاں سے سندل شریف کو زیر سرپرستی حضرت سید شاہ انتخاب عالم حسینی، زیر صدارت و نگرانی حضرت سید شاہ مظہر عالم حسینی صاحب و زیر قیادت حضرت سید شاہ مجتبی عالم حسینی وکیل صاحب کی قیادت میں کثیر عوام و مریدین کے ہمراہ شہر کے مختلف گلیوں سے گزرتے ہوئے درگاہ شریف پہنچا، جہاں درود و سلام کے ساتھ سندل شریف کو درگاہ شریف پر پیش کیا گیا۔ اس موقع پر اہل خیر حضرات کی جانب سے درگاہ انتظامیہ کی جانب سے کئی خیر کے کام انجام دیے گئے۔ اس موقع پر عرس شریف میں شہر کے معزز حضرات نے شرکت کی، جن میں صدر عیدگاہ مدینہ مولانا کریم الدین کمال ٹیآرایس قائد و صدر جمعیت القریش ایکشن کمیٹی رفیق قریشی، کانگریس پی سی سی ڈیلیگیٹ عیسیٰ، کانگریس شہری اقلیتی سیل صدر محمد اعجاز و دیگر نے شرکت کی، اور ملک میں امن و امان و کورونا کے خاتمے کے لیے دعائیں کی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضرت سید شاہ امان اللہ کا عرس شریف تھا، ماشاءاللہ بہت ہی اچھی طریقے سے اور بہت ہی اسموتھ طریقے سے ہوا ہے۔ لوگ بھی زائرین بھی کافی ہے اور آنے جانے کی تکلیف بھی نہیں، پولیس کا انتظام بھی کافی بہت اچھا رہا، لوگ بھی مطمئن ہیں، اور انشاءاللہ سما کا پروگرام قلعہ چوراستہ پہ رہیں گا بادشاہ۔ اگر یہ کوئی 9 بجے سے پہلے دیکھ رہے ہیں تو حضرات سے میری گزارش ہے کہ تام کا بھی انتظام ہے، اور بعد نماز عشاء تقریباً 9 بجے کے بعد میں سما کا پروگرام قلعہ چوراستہ خانقاہ بہلول پہ رہے گا۔ آپ لوگ سے شرکت کی گزارش ہے، اور پوری عوام سے گزارش ہے کہ بھی آج کا دن بھی اگر نیوز دیکھ رہے ہیں تو اور کل بھی آسانی سے آئیے، لیکن کووڈ کا سسٹم تھوڑا سا ذہن میں رکھ کے آپ جو ہے احتیاط برتنے کی کوشش کریے لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کا پروگرام یہاں پر بابن صاحب پہاڑی پر رہے گا، سما کا پروگرام بعد نماز عشاء 9 بجے سے شروع ہوگا۔ الحمدللہ آج
हज़रत अमानुल्लाह शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बावन साहब पहाड़ी की दरगाह का 281वां उर्स है, यानी 281 ईयर्स यहाँ हो चुके हैं हज़रत को आए हुए। 281 साल वफ़ात पर्दा फरमाए हुए 281 साल हज़रत के हो गए हैं। आज 281वां उर्स हुआ है और औलिया अल्लाह के उर्स की तकारीब में हर कोई अक़ीदतमंद शरीक होता है और उर्स के बरसने वाले नूर में और उर्स की बटने वाली खैरात में अपना दामन भी भरता है। औलिया अल्लाह के पास जो अक़ीदत और महब्बत के साथ हाजिर होता है और अल्लाह से इन औलिया के सदक़े में जो मांगता है, यकीनन अल्लाह ताला इन औलिया के सदक़े में वो ख्वाहिशात, वो जायज़ तमन्नाएँ और वो मुरादें पूरी फरमा देता है। क्यों न हो कि ये अल्लाह के औलिया अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह की याद में गुजारे हैं। रात में इबादत, दिन में इबादत, तहज्जुद में उठना, रातों में जागना और नवाफिल की कसरत, ये सारी इबादतें उनकी ज़िंदगी की हर लम्हा अल्लाह की याद में गुजरी हैं। तो अल्लाह उनसे ऐसा खुश हुआ कि विलायत के दर्जे पर फ़ैज़ फरमा दिया और आज उनके आस्थाने पर हज़ारों लोग फ़ैज़ पा रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के लिए जो ज़िंदगी लुटाता है, अल्लाह उनके सदक़े से हम तमाम की ख्वाहिशात भी, जायज़ ख्वाहिशात को पूरा कर देता है। और शहर निज़ामाबाद के तमाम औलिया के मुतक़दीन यहाँ जमा हैं और इन्हीं का फैज़ान है कि शहर में अमन है, अमान है, सुकून है और ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मुहैया हैं। अल्लाह ताला इन औलिया के फैज़ान से हर एक को माला माल फरमाए और उन्हीं के सदक़े में हमें बेहतरीन इस्लामी ज़िंदगी अता फ़रमाए और इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने MLA कैंप ऑफिस पर क्रिसमस त्यौहार के मौके पर ईसाई तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में मलबूसात की फ़राहमी अमल में लाई। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने आज शहर के सुभाष नगर में वाक़ MLA कैंप ऑफिस पर अनकरीब मनाए जाने वाले क्रिसमस त्यौहार के पेश नज़र क्रिश्चियन बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मलबूसात की फ़राहमी अमल में लाते हुए कोविड-19 के उसूल और ज़ाबित पर मुकम्मल तौर पर अमलावरी करते हुए क्रिसमस त्यौहार की तक़रीब को खुशी के साथ मनाने की अपील की और कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को त्यौहारों के मौके पर रियासत तेलंगाना की जानिब से मलबूसात की फ़राहमी का किसी दूसरी रियासत में नज़र नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान, अवामी नुमाइंदे, कॉर्पोरेटर्स व दीगर ने शिरकत। కులము మతము అందరూ కూడా గౌరవింపబడాలి, ప్రతి ఒక్కరు కూడా సంతోషంగా ఉండాలి అనేటటువంటి భావంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు హిందూ, ముస్లిం, సిక్, ఇసాయి ఎవరైనా పర్వాలేదు అందరినీ గౌరవించాలనే ఉద్దేశంతో బతుకమ్మ పండుగకి కుల మతాలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్క ఆడబిడ్డకి బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ కావచ్చు, రంజాన్ వస్తే ముస్లిం సోదరులకు బట్టల పంపిణీ కావచ్చు, క్రిస్మస్ వస్తే మరి పేద క్రైస్తవుల యొక్క సోదరి సోదరులకు బట్టల పంపిణీ కావచ్చు, ప్రభుత్వం తరఫున ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవడం కావచ్చు, దానికి సంబంధించినటువంటి డబ్బులు కూడా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుంది। गरीब लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत CM KCR ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक की स्कीम को मुतारफ करने का RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने किया इजहार। RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने रिचपल्ली मंडल के मुकाम पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स की मुस्तहक खवातीन में फ़राहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की बरसर इख्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर KCR की कामयाब तरीन क़ियादत में गरीब व माली एतबार से कमज़ोर अफराद के ख़ानदान में मुस्तहिक लड़कियाँ जो शादी के लिए वालिदैन पर एक बोझ तस्वुर की जाती है, जिनकी शादी के लिए सरप्रस्त दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हुआ करते हैं, इन अफराद की मजबूरी को महसूस करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शादी मुबारक स्कीम को रूबे अमल में लाते हुए गरीब व नादर लड़कियों की शादी को आसान बनाने के गर्ज से 1,116 रुपए का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। డిమాండ్ ఉంటే మనకు ఉంటారు కాబట్టి దొడ్లదని చెప్తున్నాడు ఆయన। ఈ విషయాలన్నీ మన క్షేమం కోరే వ్యక్తి కాబట్టి, మన రాష్ట్రానికి ఒక తండ్రి లాంటి వ్యక్తి కాబట్టి కేసీఆర్ గారు ఇవన్నీ చెప్తున్నాడు। ఏమి బర్లేనోడు చెప్పులు లాగా గొంగనాయి కాదు, ఏమంటారు ఊళ్ళో సామెత ఉన్నది, అంటే ఈ ప్రాంతానికి మంచిగా ఉండే కానీ
అంటే చెప్తున్నా రేపు నేను అన్నాడు చెప్పున్నాయో గొంగన్నాయి కాదు నన్ను అంటారు. వాళ్ళకి ఏం బాధ్యత లేదు, ఏం బరువు లేదు వాళ్ళకు, కానీ వాళ్ళ రోడ్ల మీద వాడు తిరుగుతూ ఉంటారు. ఒకడు అంటాడు మనోడే నా దగ్గర మొడ దాకుండా పెద్ద మనిషి, పిల్లగాడు పెద్ద మనిషి కాదు. నేను ముఖ్యమంత్రి గారు నన్ను పిలిస్తే నేను పోయినా లేదా నేను పోయినా సార్ మీరు మాకు నీళ్ళు ఇవ్వాలి, సాగునీరు ఇస్తాంటే పాటలు చేరిండట, లేకపోతే వెళ్ళిపోతా వెళ్ళిపోయినట. నీ ఎవరు నువ్వు? ఎమ్మెల్యేవా, ఎంపీవా, మాజీ ఎమ్మెల్యేవా? मोहम्मद मोइजुद्दीन को रेड क्रॉस सोसाइटी का नवीपेट मंडल चेयरमैन बनाए जाने पर जमीयत उलमा की जानिब से तहनीयत। नवीपेट मंडल जिले निजामाबाद रेड क्रॉस सोसाइटी जो इंसानियत की बुनियाद पर कौम व मिलत की खिदमत करती है, जिसके तहत खून अतिया स्कूल के तलबा व तालिबात का ब्लड टेस्ट करके सर्टिफिकेट हवाले करना, इसी तरह सेहत के हवाले से शोर बेदारी का काम करना वगैरह बहुत सारे काम अंजाम दिए जाते हैं। गुज़िश्ता 5 साल से मोइज साहब वाइस चेयरमैन के ओहदे पर फाइज थे, लेकिन गुज़िश्ता कल बतारीख 20 दिसंबर 2021 को तहसीलदार मोहतरमा लता MPD साजिद अली की निगरानी में इंतखाबात अमल में आए। अक्सरियती वोट की बुनियाद पर आपका मुंतखब हुए। इस मौके पर जमीयत उलमा के जिले सदर मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब, मौलाना अरशद अली कासमी, सेक्रेटरी हाफिज मोइज हाफिज महमूद के अलावा मौलाना अब्दुल क़य्यूम शागिर कासमी, जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अब्दुल मुबीन कासमी, सेक्रेटरी इस्लाह मुआशरा कमेटी ने नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए मुबारकबाद पेश की। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ दफ्तर जमीयत उलमा बोधन रोड निज़ामाबाद पर हज़रत मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब सदर जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद की निगरानी में हमारे नवीपेट मंडल के रहने वाले जनाब मोहम्मद मोइज साहब, जिनको रेड क्रॉस सोसाइटी का अभी कल गुज़िश्ता चेयरमैन मुंतखब किया गया है। बाज़ाब्ता इलेक्शन के तौर पर तहसीलदार और दीगर अहबाब की निगरानी में गुज़िश्ता 5 साल से आप जो है वाइस चेयरमैन के ओहदे पर फाइज थे, लेकिन अब उनको चेयरमैन बनाया गया है। हम अपनी जमात की तरफ से और पूरे अहबाब की तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक दिन दोगुनी रात चौगुनी इनको तरक्यात अता फरमाए और इस लाइन से जो लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, इंसानियत की बुनियाद पर खून की ज़रूरत किसको भी पड़ सकती है। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर के अहकामात के मुताबिक मिशन भगीरथा डिवीजन से वाबस्ता ओहदेदार मुनी नायक ने दीगर अवामी नुमाइंदों के हमरा एड़पली रेसिडेंशियल कॉलेज में पीने के पानी के मसले का लिया जायजा। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर के अहकामात के मुताबिक मिशन भगीरथा डिवीजन से वाबस्ता ओहदेदार मुनी नायक ने दीगर अवामी नुमाइंदों के हमरा एड़पली के गर्ल्स रेसिडेंशियल कॉलेज में पीने के पानी के मसले का जायजा लेते हुए 40,000 लीटर के साथ ओवरहेड टैंक की तामीर के लिए 15 लाख रुपए रकम दरकार होने की बात बताई। इसी तरह से दीगर जायद कमरे जमात की तामीर के लिए इंजीनियरिंग ओहदेदारों को तहरीरी तौर पर दरख्वास्त रवाना करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच आकुला श्रीनिवास, MPDC शेख जावेद, शंकर, प्रिंसिपल सुहासिनी व दीगर ने शिरकत की। ఈరోజు ఎడపల్లి మండలంలో గురుకుల పాఠశాలలో ఎమ్మెల్యే గారు షకీలన్న గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు డిప్యూటీ సాబ్, అలాగే మా జిల్లా వైస్ చైర్మన్ రజిత ఎల్ల యాదవ్ గారు, మా సర్పంచ్ ఆకుల శ్రీనివాస్ గారు, గ్రామ పెద్దలతోటి ఈరోజు పూర్తి స్థాయిలో సందర్శించి వాటర్ ప్రాబ్లానికి కావలసినటువంటి నిధులు కానీ వాటర్ ట్యాంక్ దాదాపు 40,000 వాటర్ ట్యాంక్ 2 స్కూళ్ళకు కలిపి 40,000 ప్రపోజల్ పెట్టాలని డిప్యూటీ గారు। क्रिसमस त्यौहार के मौके पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर व इनके शरीक हयात आयशा फातिमा ने अपना फंक्शन हॉल में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा मलबूसात को ईसाई तबके के अवाम में फ्राहमी अमल में लाई। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर व इनकी शरीक हयात आयशा फातिमा साहिबा ने शहर के अपना फंक्शन हॉल में क्रिसमस त्यौहार के मौके पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा मलबूसात को ईसाई तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम में फ्राहमी अमल में लाते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की मुस्तहिक़ ख़वातीन के हवाले करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़ियादत में बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को त्यौहारों के मौके पर मलबूसात हवाले करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ अवाम को फ़ायदा पहुँचाते हुए तरक्की की जानिब गामज़ान करने का इजहार किया। కోవిడ్ వలన చాలా డిస్టర్బెన్స్ ఉంది, కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఉంది, డిస్టర్బెన్స్ ఉంది,
అటువంటి పరిస్థితుల్లో మేము ఏమి చేయలేకపోయినాం. కానీ 100% ఈసారి మళ్ళా ఈ 3 crores కాకుండా అదనపు ఫండ్స్ ఇచ్చి కూడా మీకు అన్ని విధాలుగా ఆదుకునే బాధ్యత మా మీద ఉంది. తప్పకుండా చేస్తామని తెలియజేస్తూ మళ్ళా మీ అందరికీ మరొకసారి క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఆడియోలకు చాలా బాగా అరేంజ్మెంట్ చేసిండ్రు. మా లోకల్ బోధన వారు కూడా చాలా మంచి కోఆర్డినేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు. क्रिसमस त्यौहार के मौके पर डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी के हाथों ईसाई तबके के अवाम में मलबूसात की फराहमी अमल में लाई गई। मुत्तहदा जिले निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने बांसवाड़ा शहर में क्रिसमस त्यौहार के पेश नजर क्रिश्चियन बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद को पीआर गार्डन में मलबूसात की फराहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबका से ताल्लुक रखने वाले अवाम के त्योहारों के मौके पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मलबूसात की फराहमी अमल में लाने का इजहार करते हुए तमाम क्रिश्चियन बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अवाम को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इनके साथ टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। మన దేవుడు జీసస్ గారు మరి వారి ఆశీర్వాదంతో మనం అందరము ఈరోజు చల్లగా ఉన్నామంటే జీసస్ గారి ఆశీర్వాదంతో అని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాం. మరి ఈరోజు ఇటువంటి క్రిస్మస్ పండుగకి ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం కూడా గొప్పగా భావించాలి. మరి ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి గురించి చెప్పాలంటే ఎన్నో చెప్పాలి, మీ అందరికీ తెలుసు. बालकुंडा अलखे मोरताल मंडल के दोनपाल देहात में मुकामी सरपंच प्रसाद देवन्ना नायब सरपंच पी रमेश ने मरकजी हुकूमत की मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ एहतिजाजी धरना मुनाकिद करते हुए वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला किया नजर आतिश। जिले निजामाबाद बालकुंड अलखसमली मोरताल मंडल के दोनपाल देहात में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक मुकामी सरपंच प्रसाद देवन्ना नायब सरपंच पी रमेश व रायतू सामान्य समिति मंडल सदर ने मरकजी हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के खिलाफ एक एहतिजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजरातिश किया गया। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों ने कहा कि मरकजी हुकूमत बीजेपी मुखालिफ किसान रवैया अख्तियार किए हुए है। रियासती हुकूमत की हौसला अफजाई से किसानों की काश्त करदा धान की फसल को हासिल करने से मरकजी हुकूमत इनकार करते हुए किसानों को मुश्किलात मसाइल से दो चार कर रही है। किसानों की फसलों की खरीदारी के बजाय सिर्फ सियासी बयानबाजी पर अमल के जरिए मरकजी हुकूमत जय जवान जय किसान के नारे को फरामोश करके किसानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रायतू ग्रामा सामान्य समिति सदर लक्ष्मण, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, रंगन्ना, मुकामी अवाम, खवातीन व दीगर ने शिरकत की। कोरोना वायरस से तालीमी सूरत-ए-हाल शदीद मुतासिर, बंद की जरूरत पर तालीमी इदारों को आखिर में बंद करने और सबसे पहले कुशादगी पर जोर। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन पर काबू करने के लिए अगर बंद करने की नौबत आती है तो ऐसी सूरत में सबसे आखिर में स्कूलों और तालीमी इदारों को बंद किया जाएगा और हालात की मामूल पर आने के बाद सबसे पहले जिस शोबे को कुशादगी अमल में लाई जाएगी वो शोबे तालीम होगा। आलमी इदारा सेहत की जानिब से ओमिक्रॉन पर काबू पाने के इक़दामात के सिलसिले में तैयार करदा मंसूबे की तैयारी के दौरान यूनिसेफ की जानिब से ये तजवीज़ रवाना करते हुए आलमी इदारा सेहत और दुनिया भर की मुमालिक से ख्वाहिश की गई है कि अगर ओमिक्रॉन पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दामात की जरूरत पेश आती है तो ऐसे में सबसे आखिरी में तालीमी इदारों को बंद करने के इक़दामात किए जाए। यूनिसेफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ओहदे पर अपनी मियाद मुकम्मल करने वाली मिसेस हिजिता फोर ने ये बात कही। इन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान तालीमी इदारों की सूरत हाल और कोरोना वायरस के सबब बच्चों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है और इस मुद्दत के दौरान बच्चों की न सिर्फ तालीम मुतासिर हुई है बल्कि वो नफ्सियाती अमराज का भी शिकार होने लगे हैं। इसीलिए हुकूमतों बिलखुसूस आलमी इदारा सेहत के ओहदेदारों को ओमिक्रॉन से निमटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात में इस बात का खुसूसी ख्याल रखना चाहिए और मरहलेवार अंदाज में आयद की जाने वाली तहदीदात में सबसे आखिर में तालीमी इदारों पर तहदीदात आयद करने के इक़दामात करने चाहिए। इन्होंने बताया कि जब ओमिक्रॉन पर काबू पाने के बाद मरहलेवार अंदाज में तहदीदात खत्म की जाएगी तो ऐसी सूरत में सबसे पहले स्कूलों और
तालीमी इदारों की कुशादगी के इक़दाम किए जाने चाहिए। मिसेस हिजिटा फोर ने कहा कि आइंदा साल शायद तलबा के लिए एक और गैर रवायती और गैर रस्मी साल साबित होगा और इस तालीमी साल के दौरान भी इनकी तालीम बुरी तरह से मुतासर होने का खदशा है। इन्होंने तलबा की तालीम को मुतासर होने से बचाने और बच्चों को नफ्सियाती अमराज का शिकार होने से महफूज रहने के लिए इनकी मसरूफियात को मुनासिब अंदाज में जारी रखने के इक़दाम की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि स्कूलों को चाहिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूनिसेफ ने मुस्तकबिल की सूरत हाल का तस्करा करते हुए कहा कि डिजिटल और IT के जरिए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा तक रसाई और इन्हें तालीम से मरबूत करने के इक़दाम किए जाने चाहिए और डिजिटल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए चलाई जाने वाली क्लासेस को मज़ीद बेहतर बनाने के इक़दाम करते हुए शोबे में सरमायाकारी पर तवज्जो दी जानी चाहिए। रियासत में खून मुंजमद कर देने वाली सर्दी, कई मुकामात पर दर्ज हरारत 10 से कम होने का इम्कान। तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा होता जा रहा है और कई इलाकों बिलखुसूस शुमाली अजला में दर्ज हरारत 10 डिग्री से भी कम हो गया है। शहर के कई इलाकों में सुबह में सर्दी की शिद्दत रिकॉर्ड तोड़ने लगी है। 9 ही इलाकों में भी शिद्दत देखी जाने लगी है। दोनों शहरों के इलाके बनलागुड़ा, बोयनपल्ली, पटनचेरू, राजेंद्र नगर, शमशाबाद, रामचंद्रपुरम के अलावा BHEL वगैरह में दर्ज हरारत में नुमाया गिरावट आई है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद यौम और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दर्ज हरारत में मज़ीद 5 डिग्री की गिरावट आ सकती है और बाज़ इलाकों में दर्ज हरारत 5 ta 7 डिग्री हो सकता है। कमरम भीम, विकाराबाद, आदिलाबाद, नागर कर्नूल, वरंगा रेड्डी में 7 ta 10 डिग्री दर्ज हरारत गुज़िश्ता शब रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक दर्ज हरारत मामूल से 2 ta 3 डिग्री कम रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे सर्दी की लहर रिकॉर्ड की जा रही है। महकमे की जानिब से एहतियाती तदाबीर के लिए अलर्ट जारी किया जा रहा है। शाहपुर नगर, बालानगर, राजेंद्र नगर, कोमपल्ली के अलावा दीगर कई इलाकों में रात देर गए सर्द हवाएं महसूस की जाने लगी हैं और दर्ज हरारत में 3 ta 4 डिग्री कम हो रहा है। बताया जाता है कि आदिलाबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली, निर्मल, कामारेड्डी, मेदक, सिद्दीपेट, संगारेड्डी और रंगारेड्डी व दीगर अजला में शदीद सर्दी की लहर बरकरार रहने के इम्कानात है, जबकि शुमाली अजला के साथ सेंट्रल तेलंगाना में भी दर्ज हरारत में गिरावट आ सकती है। माहिरीन का कहना है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में सर्दी की लहर में इजाफा और दर्ज हरारत में गिरावट के इम्कान पर अलर्ट जारी किया जाएगा ताकि अवाम एहतियात करे और सर्दी के मनफी असरात से खुद को महफूज रख सके। वोटर शनाख्ती कार्ड को आधार से मरबूत करने का बिल मंजूर। तरमीमी बिल को लोकसभा की निदाई मंजूरी। वोटर्स की हैसियत से रजिस्ट्रेशन के लिए साल में 4 मौक़े दस्तयाब। लोकसभा ने पीर को इंतखाबी क़वानीन तरमीमी बिल 2021 मंजूर कर लिया, जिसके तहत वोटर शनाख्ती कार्ड को आधार के साथ मरबूत करने की गुंजाइश मिल गई है। ये बिल निदाई वोट के जरिए मंजूर किया गया। इस बिल में गुंजाइश है कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स उन लोगों से आधार नंबर तलब कर सकते हैं जो अपनी शनाख्त साबित करने के मकसद से बतौर वोटर्स अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। इसमें ये गुंजाइश भी है कि इंतखाबी फहरिस्त में पहले से जो नाम मौजूद है उनकी जांच के लिए भी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स आधार नंबर तलब कर सकते हैं। नेस एक से ज्यादा हल्के की इंतखाबी फहरिस्त में यकसा नाम के वोटर्स पाए जाए तो उनके दरमियान तखसीस के लिए भी आधार नंबर तलब किए जा सकते हैं। साथ ही इस तरमीमी बिल में ये वजाहत भी कर दी गई है कि आधार नंबर पेश करने में किसी भी फर्द की नाकामी इंतखाबी फहरिस्त में उसके नाम की अदम शमूलियत की वजह नहीं बनेगी। दीगर दस्तावेजात की जांच करते हुए उसे पहले की तरह इंतखाबी फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। इसी तरह वोटर शनाख्ती कार्ड्स को आधार से मरबूत करना फिलहाल रजाकाराना नोयत का अमल है। आज का मंजूरा बिल कानून अवामी नुमाइंदगी 1950 और 1951 के बाद दिफात में तरमीमी करता है। वोटर शनाख्ती कार्ड को आधार से मरबूत करने का बुनियादी मकसद यकसा फर्द का मुख्तलिफ मुकामात पर इंतखाबी फहरिस्तों में अपने नाम की शमूलियत का तदारुक करना है। RP एक्ट 1950 के सेक्शन 14 में तरमीमी अहल अफराद के लिए वोटरों के तौर पर रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में क्वालिफाई होने की 4 तारीख फ्राहम करेगी। मौजूदा तौर पर हर साल 1 जनवरी ही वाहिद तारीख है जिसके एतबार से दरख्वास्त कबूल की जाती है। 1 जनवरी को या उससे कबल 18 साल के होने वाले अफराद वोटरों के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद 18 साल के होने वालों को रजिस्ट्रेशन के लिए पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ता था, जो आज के बिल की मंजूरी के बाद नहीं होगा।
मरीज की तशखीस के बाद डॉक्टर ओमिक्रॉन से मुतासिरा मरीज से राब्ते में आने वालों की तफसीलात और नमूनों की जांच का फैसला। तेलंगाना में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के बैनुल-अक़वामी मरीज से राब्ते में आने वाले डॉक्टर को ओमिक्रॉन की तौसीक़ के बाद महकमे सेहत की तशवीश में इजाफा हो चुका है और कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन से मुतासर होने वाले डॉक्टर से राब्ते में आने वाले तिब्बी अमले के अलावा दवाखाने में खिदमत अंजाम देने वाले अमले और मरीजों की जाँच के इक़दाम किए जाएंगे। शहर हैदराबाद के एक कॉर्पोरेट दवाखाने में खिदमत अंजाम देने वाले ऑन्कोलॉजिस्ट माहिर कैंसर डॉक्टर ने बैरूनी मुल्क से आए एक कैंसर की मरीज की तशखीस की थी। इस वक्त तक मरीज और डॉक्टर दोनों को इस बात का इल्म नहीं था कि मरीज कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन से मुतासिर है। ओमिक्रॉन के मुतासिर की निशानदही और इस मर्ज को खरतीनिया करने के बाद जो लोग इस शख्स से राब्ते में आए थे, इनके नमूनों के उसूल के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ है कि शहर के सरकर्दा कॉर्पोरेट दवाखाने में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर इस तशखीस ने मुतासिर किया है और अब महकमे सेहत की जानिब से इस बात की कोशिश की जा रही कि डॉक्टर से जो लोग राब्ते में आए हैं या जिन मरीजों की डॉक्टर ने 16 दिसंबर के बाद तशखीस की है, इन तमाम के नमूने हासिल किए जाए ताकि ओमिक्रॉन के मुतासरीन की जांच को यकीनी बनाया जाए। महकमे सेहत के ज़राए के बाज़ाब्ता इस बात की तौसीक़ नहीं की है कि ओमिक्रॉन का समाजी फैलाव शुरू हो चुका है, लेकिन महकमे जाती असास पर किए जाने वाले इक़दाम को देखा जाए तो समाजी फैलाव की तौसीक़ होने लगी है। शाजिया परवीन को साइबर क़वानीन में नलसार यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने अवार्ड पेश किया। मोहम्मद अली शब्बीर की दुख्तर को एजाज। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली कानून दा शाजिया परवीन ने साइबर क़वानीन के शोबे में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में टॉपर करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है। नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से कोर्स की तकमील की गई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमन्ना ने यूनिवर्सिटी के 18वें सालाना कॉन्वोकेशन में शाजिया परवीन को गोल्ड मेडल और सिंध तक 2020 के लिए ये गोल्ड मेडल दिया गया है। कॉन्वोकेशन में चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट सतीश चंद्र शर्मा, वजीर कानून इंदिरा करण रेड्डी, वाइस चांसलर नलसार यूनिवर्सिटी प्रोफेसर फैजान मुस्तफा और रजिस्ट्रार बालाकृष्णा रेड्डी शरीक थे। साइबर क़वानीन में गोल्ड मेडल खानगी इदारे इंफोट्रेक सिस्टम ने कायम किया है। शाजिया परवीन को 88 की मुंजमिला 77 निशानात हासिल हुए। वो 170 उम्मीदवारों में मेरिट से कामयाबी हासिल करने वाली वाहिद तुलबा है। 2011 में शाजिया परवीन ने वकालत में अपने कैरियर का आगाज किया और जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की निगरानी में तजुर्बा हासिल किया। वो गुज़िश्ता 10 बरसों से तेलंगाना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं और वो नामुर कानूनदा और साबिक एडवोकेट जनरल बी प्रकाश रेड्डी के साथ कई अहम मुकदमात की पैरवी कर रही हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल डॉक्टर अभिषेक मुनु संघवी के जूनियर की तरह खिदमत अंजाम दे चुकी है। शाजिया परवीन ने नसर स्कूल से तालीम हासिल की और नलसार यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। वो साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की दुख्तर और हुकूमत के मशीर AK खान रिटायर्ड IPS की बहू है। इनके शौहर मोहसिन खान एक सनतकार है। साइबर क़वानीन में गोल्ड मेडल के उसूल पर शाजिया परवीन ने बारगाही इलाही में सजदा शुक्र बजा लाया। TRS कायदीन का अखिलती अकामती कॉलेज को दौरा। इंटरमीडिएट के शानदार नताइज हासिल करने वाले तुलबा को तहनीत व हौसला अफजाई। आज TRS कायदीन फारूक अहमद सिद्दीकी, टाउन प्रेसिडेंट सैयद आसिफ, नायब चेयरमैन AMC ने टेमरेज जूनियर कॉलेज भैंसा पहुंचकर प्रिंसिपल व स्टाफ व तुलबा से मुलाकात की और इंटर साल अव्वल में बेहतरीन कामयाबी पर मसरत का इजहार किया। इस मौके पर मज़कूरा कायदीन ने आला निशानात हासिल करने वाले चारों तुलबा की शालपोशी की और प्रिंसिपल इलियास अहमद की भी खिदमात को सराहते हुए शालपोशी की गई। इस मौके पर फारूक अहमद सिद्दीकी व सैयद आसिफ ने तुलबा को मुखातिब करते हुए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और मदुल रुकन असम्बली G विठल रेड्डी की जानिब से कॉलेज के लिए पोडियम का भी अतिया भी दिया गया। इस तकरीब में स्टाफ G साइना, रमन्ना, मोहम्मद सलीम, डिप्टी वार्डन अब्दुल रफीक के अलावा असातिज़ा जिनमें अब्दुल अहमद, एजाज अहमद, G महेश, प्रकाश के अलावा शेख खलीफ थे, वो नॉन टीचिंग अमला भी मौजूद थे। भैंसा शहर के SS कॉटन फैक्ट्री में अचानक कातिल जदगी।
भैंसा शहर के मशहूर मारूफ सनतकार रामाराव पटेल की एसएस कॉटन फैक्ट्री में आतिशदगी का वाकया पेश आया। आतिशदगी के सबब होने वाले नुकसान का तखमीना अभी तक मालूम न हो सका। जराये से मालूम हुआ कि फायर इंजन के जायज वक़्त पर पहुंचने और आग पर काबू पाने तक लाखों रुपए का माल जलकर खाके तर हो गया और धुएं के सबब शहर का फिजाई माहौल मुकम्मल आलूदा हो गया था। फैक्ट्री के मजदूरों और फायर इंजन अमले के बर वक्त हिकमत वो काविशों के सबब आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया, लेकिन आग लगने की अहम वजह अभी तक मालूम ना हो सकी। आंगनवाड़ी मराकज पर हामिला खवातीन को मुतवाज़न ग़िज़ा की फराहमी अमल में लाने के लिए बोधन CDPO विनोदा ने आंगनवाड़ी टीचर्स को दी हिदायत। एड़पली मंडल के मुकाम पर CDPO विनोदा ने नेहरू नगर देहात में मुतवाज़न ग़िज़ा की तक़रीब का इफ्तिताह अमल में लाते हुए बताया कि मंडल से मुताल्लिक़ा तमाम मौज़ूआत में वाक़े आंगनवाड़ी मरकज में हुकूमत की जानिब से फ़राहम करदा मुतवाज़न ग़िज़ा को आंगनवाड़ी टीचर्स के हाथों हामिला खवातीन में फ़राहमी अमल में लाने का इजहार करते हुए कहा कि तमाम हामिला खवातीन के आंगनवाड़ी सेंटर से रुजू होने के बाद ही इन्हें मुतवाज़न ग़िज़ा फ़राहम करने के लिए आंगनवाड़ी टीचर्स को हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में सरपंच अमानुल्लाह, आंगनवाड़ी टीचर मालिनी, शशिकला, सफिया बेगम व दीगर ने शिरकत की। మంచి ఆరోగ్యవంతమైన బిడ్డకు జన్మనిచ్చే అవకాశం ఉంటది। ఆ ఆరోగ్యవంతమైన బిడ్డ జన్మించినట్లయితే మైండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది బాగుంటుంది। ఎప్పుడైతే గర్భిణి మంచి ఆహారం తీసుకుంటుందో అప్పుడు ఆరోగ్యవంతమైన బిడ్డకు జన్మనిచ్చే बालकुंडा अलखे मोरतार मंडल के मुकाम पर CM KCR की हिदायत पर मंडल से वाबस्ता सदर व दीगर अवामी नुमाइंदों ने मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ सौतेला सलूक करने के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनक़िद करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला किया नजर आतिश। बालकुंडा अल-असम्बली मोरतार मंडल के मुकाम पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर मंडल से वाबस्ता सदर व दीगर अवामी नुमाइंदों ने किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को खरीदने से इनकार करने की बिना पर सैकड़ों कायदीन व कारकुनान की क़ियादत में गांधी मुजस्सिमे से शुरू करदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अर्थी जुलूस का नई मार्केट तक इनेकाद अमल में लाते हुए नजरातिश किया गया। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने मरकजी हुकूमत के मुखालिफ किसान इक़दामात पर सख्त तनक़ीद की और कहा कि हुकूमत में जब से बीजेपी हुकूमत बरसर इक़्तिदार में आई है इस वक्त से आज तक गरीबों और किसानों की दुश्मन बनी हुई है। किसानों के धान खरीदने से इनकार, यासंगी में किसानों को धान की काश्त से रोका जा रहा है, जिससे आज किसान तबका इंतहाई परेशान कुन हालात से दो चार होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कमरपल्ली ज़राई मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन पापाई पवन, DCCB डायरेक्टर M भूमना, सोसाइटी वाइस चेयरमैन D नवीन व दीगर ने शिरकत की। जिले निजामाबाद लाइब्रेरी चेयरमैन के तौर पर LMB राजेश्वर ने ओहदे का जायजा लेकर बालकुंडा में आमद के मौके पर अवामी नुमाइंदों की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए दी मुबारकबाद। बालकुंडा हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले LMB राजेश्वर ने जिले निजामाबाद लाइब्रेरी चेयरमैन के तौर पर जायजा लेकर अपने आबाई मुकाम पर आमद के मौके पर अवामी नुमाइंदों बालकुंडा मंडल पर वाक़े लाइब्रेरी में शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर MPP लावण्या लिंगम गौड, सरपंच बोसा सुनीता, लाइब्रेरी के मेम्बरान व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। जोश खरोश के साथ उर्स शरीफ हज़रत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बाबन साहब पहाड़ी के संदल मुबारक का एहतिमाम। मुल्क में अमन व अमान व कोरोना के खात्मे के लिए की गई दुआएं। रियासत व जिले में सर्दी की लहर में हुआ बेतहाशा इजाफा। जिले में 12 डिग्री दर्ज हरारत किया गया रिकॉर्ड। अवाम से एहतियात की अपील। तमाम तबकात को मसावी हक फ्राहम करने वाली सेकुलर जमात TRS CM KCR रुकन असम्बली शकील आमिर, इन्होंने क्रिसमस त्यौहार के मद्देनजर ईसाई भाइयों में की मलबूसात की तक़सीम। मोहम्मद मोइजुद्दीन को रेड क्रॉस सोसाइटी मंडल चेयरमैन नामजद करने पर जमीयत उलमा की जानिब से दी गई तहनीत। हर तबके व
मजहब की फलाह व बहबूद के लिए सीएम केसीआर कोशिश। रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता, इन्होंने क्रिसमस त्यौहार के मद्देनजर ईसाई बिरादरी में की मलबूसात की तस्दीक। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।